Hello students, my name is Hira Lotia from JMP English Medium School. Kids, our chapter is 3, Housing and Clothing. We already completed all 4 sessions, right? So this is session number 5. Kids, in this session today I am going to explain you all the textbook exercise. मतलब जो हमारी student book है ना, उनकी सारे की सारी exercise today in this session I'll explain, okay? उनमें particularly what I am going to explain you, fill in the blanks with the correct words, match the following, true or false, choose the correct answer and answer in 1 or 2 sentences और answer the following questions. तो ये सेशन में मैं आपको ये सारी की सारी चीज़ें बताऊंगी. बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू टेल यू, ये चैप्टर था हाउसिंग और क्लोथिंग के ऊपर, राइट? मतलब हाउस को कैसे क्लीन रखना है और कौन कौन से टाइप्स के क्लोथ्स होते हैं, फाइबर्स कितने होते हैं, लाइक ये सब कुछ था. तो फटाफट से वो एक बार रिकैप कर लेते हैं. ओके, अ क्लीन हाउस मतलब हम घर को क्लीन कैसे रखेंगे. A clean house should have large and airy windows to let the sunlight in. This keeps the rooms dry and free from germs. Windows should have wire netting to keep out flies and mosquitoes. Right? हमें wire nettings लगानी चाहिए, उस वजह से flies और mosquitoes बाहर हो जाए. Things should be kept in their proper places. This makes a house look tidy. मतलब हम सारी की सारी चीज़ों को अपनी प्रॉपर प्लेस पे रखेंगे तो हाउस टाइडी दिखेगा. All the rooms in a house should be swept and mopped regularly. मतलब कि हमें घर में swept और mopped regularly करना चाहिए. Garbage should be collected and removed regularly. Garbage bins should be kept clean and covered. गार्बेज बिन्स को डेली हमें कलेक्ट भी करना चाहिए और उसको थ्रो भी कर देना चाहिए और गार्बेज बिन को डेली हमें वॉश भी करना चाहिए. इससे हमें कुछ भी प्रॉब्लम होगी नहीं. नाउ क्लोथ्स एंड फाइबर्स. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड फ्रॉम इंसेक्ट्स बाइट्स. Clothes are made from fibers, as we all know. Fibers are very thin hair-like materials that are spun into threads. Threads are woven together to make fabric or cloth. Pieces of fabric are stitched together to make the clothes we wear. Fibers are also used to make ropes and mats. Fibers are of 2 types, natural and man-made. Now, natural fibers. Fibers that are obtained from either plants or animals are called natural fibers. मतलब कोई भी चीज़ अगर हमें plants और animals से मिल रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे? Natural fibers. Examples are cotton, wool and silk. Fibers from plants. We get fibers such as cotton from cotton plants and jute from jute plants. We wear cotton clothes during summer because they keep us cool. हम cotton clothes क्यों पहनते हैं summer में? Because they keep us cool. We make ropes, bags and other such products from jute fibers. हम jute fibers से bags, ropes ये सारी की सारी चीज़ें बना सकते हैं. Now fibers from animals. We get fibers such as wool from sheep and silk from silkworms. We wear woolens in the winter to keep ourselves warm. मतलब हमें सिल्क में से वूल मिलता है और वूल हमें कौन सीजन में पहनते हैं? विंटर में, राइट? नाउ man-made fibers. Fibers that are made by men are called man-made or synthetic fibers. Example are nylon and polyester. We make ropes, raincoats, clothes and blankets using synthetic fibers. मतलब synthetic fibers को man-made fibers भी बोल सकते हैं क्योंकि वो हमने बनाया है, राइट? और उससे हम कौन कौन सी चीज़ें बनाते हैं? रेनकोट्स, ब्लैंकेट्स, रोप्स, ये सारी की सारी चीज़ें man-made होती है, मतलब synthetic fiber से बनती है. So kids, here I completed revision of this chapter. Now let's start textbook exercise.
पेज नंबर 171, फिलिंग द ब्लैंक्स। यस, आप लोगों को आपकी बुक का 171 पेज ओपन करोगे तब आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है नंबर 1 में। वो क्या, कौन सा पिक्चर दिख रहा है आपको? ब्रिक का, राइट। तो बी के बाद डैश है, उसके बाद भी डैश है और उसके बाद सी के है, राइट। तो क्या आएगा? BRICK, ब्रिक। वो जिसका पिक्चर है उसका स्पेलिंग हमें लिखना है ब्रिक। नाउ नंबर 2, वो कौन सा ट्री दिख रहा है आपको? याद आ रहा है कुछ? यस, वो बाम्बू जैसा है, मतलब वो बाम्बू ही है। कौन सा है? बाम्बू। तो B डैश डैश B डैश डैश, मतलब BAMBOO, बाम्बू। अब मेरे साथ साथ फील करते जा रहे हो ना फटाफट से। नाउ नंबर 3, पत्थर जैसा दिख रहा है ना, पत्थर जैसा दिख रहा है ना, तो वो क्या है? यस, पत्थर। तो पत्थर को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टोन। क्या बोलेंगे? स्टोन। STONE, STONE, स्टोन। नाउ नंबर 4, यस, वो वुड है, राइट। तो W डैश डैश D, मतलब WOOD, wood. So kids, here we completed our textbook exercise page number 171. Now blanks with the correct words, वो है पेज नंबर 174। कौन से पेज पे है? 174। ऑप्शंस ऑलरेडी दिए गए, फ्रॉम दैट यू आर सपोज टू सिलेक्ट ऑल द थिंग्स एंड यू हैव टू फिल द थिंग्स। ओके, आपको डिस्प्ले हो रहा है ब्लैंक्स पेज नंबर 174 की। यस, अ क्लीन हाउस शुड हैव लार्ज एंड एरी ब्लैंक। क्लीन हाउस में क्या होता है? लार्ज और एरी क्या होता है? विंडोज या गार्डन्स? क्या आएगा? यस, क्या आएगा? विंडोज। एक अच्छे घर में बड़ी और एकदम एरी वाली विंडोज होनी चाहिए, राइट। नाउ नंबर 2, कीपिंग थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेस मेक अ हाउस लुक ब्लैंक। अगर हम सारी की सारी चीज़ों को अपनी प्लेस पर रखेंगे तो हाउस कैसा दिखेगा? डर्टी या टाइडी? यस, और सारी की सारी प्लेस पर रखेंगे तो क्या, कैसा दिखेगा? टाइडी दिखेगा। नाउ नंबर 3, फाइबर्स आर स्पन इनटू ब्लैंक, मतलब वो जो फाइबर्स होते हैं हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? थ्रेड में। फैब्रिक या थ्रेड में? यस, थ्रेड में। थ्रेड के बाद किस में कन्वर्ट होता है? फैब्रिक में। तो फाइबर्स पहले किस में कन्वर्ट होते हैं? थ्रेड में। ओके, नाउ नंबर 4, वी वेयर ब्लैंक क्लोथ्स ड्यूरिंग समर बिकॉज दे कीप अस कूल। समर सीजन में हम कौन से टाइप्स के क्लोथ्स पहनते हैं जिससे हम कूल कूल फील करें? कॉटन या वुलन? यस, हम कौन सा पहनते हैं? कॉटन क्लोथ्स। कौन सा पहनते हैं? कॉटन, जिससे वो हमारे कॉटन क्लोथ्स स्वेट को एब्जॉर्ब करेंगे और इजीली हम कूल कूल फील करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे पेज नंबर 174 का क्वेश्चन खत्म। नाउ पेज नंबर 175, मैच द फॉलोइंग। दिख रहा है आपको यहाँ पे? डिस्प्ले हो रहा है, राइट। मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए है, कॉलम बी है। कॉलम ए में क्वेश्चंस है और कॉलम बी में आंसर्स है। सही सिलेक्ट करके हमें उसके साथ स्केल से मैच करना। यू आर नॉट अलाउड टू डू विथ योर हैंड्स, यू always need to use scale for matches. Okay, this is my strict instruction to you all. Now sunlight, मतलब सनलाइट में से हम ये पांचों के पांचों ऑप्शन रीड करते हैं, फिर देखेंगे कि कौन सा सही ऑप्शन है। Cleaned regularly? No. Keeps a room dry and germ free, मतलब कि सनलाइट अगर रूम में आता है तो रूम को ड्राई भी रखेगा और जर्म्स फ्री भी रखेगा। ये सही स्टेटमेंट है। थर्ड वाला देख लेते हैं। मस्ट बी केप्ट कवर्ड? नो। नंबर 4, केप्ट इन देयर प्रॉपर प्लेसेस। सनलाइट को तो हम अपनी प्रॉपर प्लेसेस के ऊपर रख नहीं सकते। फिर लास्ट वाला, कीप फ्लाइज अवे? नो। तो कौन सा वाला है?
नंबर 2 वाला कि इससे सारे के सारे रूम्स ड्राई और जर्म्स फ्री रहेंगे, तो ए के सामने क्या आएगा 2। नाउ बी में वायर नेटिंग से क्या होता है, कीप फ्लाइज अवे, मतलब फ्लाइज को वो हमारे घर पे आने से दूर हो जाती है, राइट, दूर रखते हैं हम लोग, तो क्या आएगा आंसर, कीप फ्लाइज अवे। सो किड्स, तो वो कौन सा ऑप्शन है, सेकंड में, बी में क्या आएगा नंबर 5। नाउ सी, रूम्स को क्या करना चाहिए, फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, क्लीन रेगुलरली, मतलब हमें रूम्स को क्लीन रोज करना चाहिए, तो सी के सामने कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 1। नाउ नंबर 5, सॉरी डी, उसमें क्या आएगा गार्बेज बीन्स। अभी कौन सा ऑप्शंस बचे हैं, 2 ऑप्शंस बचे, मस्ट बी केप्ट कवर्ड और कीप इन देयर प्रॉपर प्लेसेस, मतलब कि गार्बेज बीन्स को कवर करके रखना चाहिए, क्या उसको अपनी प्रॉपर प्लेस पर रखना चाहिए, कौन सा ऑप्शन सही आएगा, यस, गार्बेज बीन्स को हमें ऑलवेज कवर करके रखना है, तो क्या आएगा डी के सामने नंबर 3। किया आप लोगों ने मैच, यस। नाउ लास्ट वन, हाउस होल्ड थिंग्स, मतलब कोई भी घर की चीज को हमें क्या करना चाहिए, कीप इन देयर प्रॉपर प्लेसेस, उसको अपनी प्रॉपर प्लेसेस पे रखना जरूरी है। सो किड्स, हियर वी कंप्लीटेड आवर मैथ्स द फॉलोइंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स, उसके नीचे ये आपको दिख रहा है ना, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। आपको पूरा का पूरा ट्रू और फॉल्स लिखना नहीं है, जो स्टेटमेंट आपको सही लगेगी उसके सामने आपको टी लिखना है, और जो स्टेटमेंट आपको गलत लगेगी उसके सामने आपको एफ लिखना है, ओके। सो शुड आई स्टार्ट रीडिंग? ए, सनलाइट कीप्स द रूम्स ड्राई एंड फ्री फ्रॉम जर्म्स। सनलाइट रूम को ड्राई रखता है और जर्म्स को आने से भी रोकता है, मतलब कि जर्म्स को आने नहीं देते हैं सनलाइट। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो उसके सामने हम क्या लिखेंगे, टी, राइट। नाउ बी, विंडोज शुड नॉट हैव वायर नेटिंग, मतलब विंडोज में वायर नेटिंग नहीं होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? यस, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब फॉल्स, तो हम उसके सामने क्या लिखेंगे, एफ। नाउ सी, फाइबर्स आर वोवन टू मेक क्लॉथ और फैब्रिक। फाइबर्स इसीलिए बनाते हैं जिससे हम कोई भी क्लॉथ और फैब्रिक बना सके। यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो उसके सामने क्या आएगा, टी, मतलब हम फाइबर से कोई भी क्लॉथ को बना सकते हैं, राइट। नाउ डी, वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन विंटर्स टू कीप अस वार्म। हम लोग कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं विंटर्स में अपने आप को गर्म फील कराने के लिए। नो, हम तो वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं, कॉटन तो हम समर में पहनते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? यस, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो उसके सामने क्या लिखेंगे, एफ। नाउ ई, नायलॉन एंड पॉलिस्टर आर एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स। नायलॉन और पॉलिस्टर नेचुरल फाइबर्स के एग्जांपल्स है? नो, ये सारे के सारे सिंथेटिक फाइबर्स, मतलब मैन मेड फाइबर्स के एग्जांपल्स है, राइट। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? यस, ये स्टेटमेंट गलत है, तो हम उसके सामने क्या लिखेंगे, एफ। नाउ किड्स, हियर वी कंप्लीटेड आवर ट्रू और फॉल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर, वो भी आपको यहीं पे डिस्प्ले हो रहा है, राइट, पेज नंबर 175 पे ही है। नाउ उसमें ए, What helps keep a house clean? इनमें से कौन सी चीज हाउस को क्लीन रखने में हमारी हेल्प करती है? 1. कीपिंग द गार्बेज बिन कवर्ड, मतलब डस्टबिन को कवर रखना चाहिए। नंबर 2, अलाउिंग सनलाइट इन,
सनलाइट को अंदर आना देना चाहिए। सी, क्लीनिंग द हाउस, मतलब हाउस को क्लीन रखना चाहिए। और 4 वाला ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये सारे के सारे। तो कौन सा आंसर आएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। बिकॉज क्यों आएगा? बिकॉज ये तीनों की तीनों चीजें घर को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस राइट है। तो हम क्या लिखेंगे? ऑल ऑफ द अबव, कि आगे के तीनों सही है। क्लियर? नाउ बी, व्हाट डज वायर नेटिंग ऑन विंडोज हेल्प कीप अवे, मतलब वायर नेटिंग्स को लगाने से कौन घर के अंदर नहीं आ सकता है और कौन घर के बाहर ही रहेगा? मस्किटोज, सनलाइट, ब्रीज या फ्रेश एयर? आई थिंक सबको ये आंसर्स आ गया है। वायर नेटिंग्स घर की विंडोज में डालने से मॉस्किटोज अंदर आएंगे नहीं। क्लियर? नाउ सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड ऑफ फाइबर्स, इनमें से कौन सी चीजें फाइबर से बनी होती है? क्लोथ्स, हाउसेस, बुक्स या शेल्व्स? क्लियर है? फाइबर से कौन सी चीज बनी होती है? यस, फाइबर से क्लोथ्स बनते हैं। नाउ डी, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक फाइबर, इनमें से कौन सी चीज में से सिंथेटिक फाइबर है? वूल, नायलॉन, सिल्क या जूट? कौन सी चीजें सिंथेटिक है? मतलब कि हमने मैन मेड से बनाई है। वूल तो शिप से मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है, जूट भी प्लांट से मिलता है। तो कौन सा ऑप्शन बचा? यस, 2 वाला, नायलॉन, जो कि वो मैन मेड है। तो कौन सा ऑप्शन में हम टिक करेंगे? नंबर 2। नाउ ई, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अस वूल एंड सिल्क, इनमें से कौन सी थिंग्स हमें वूल और सिल्क देती है? प्लांट्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स या बर्ड्स? सोचो किड्स, वूल और सिल्क दोनों के दोनों एनिमल से ही मिलते हैं, इनमें से कोई भी प्लांट में से नहीं मिलता है। तो आंसर क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स। तो हम 2 के ऊपर टिक करेंगे। ओके, सो किड्स, हियर वी कंप्लीटेड आवर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, मतलब टेक्स्ट बुक में जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे वो हम यहीं पे कंप्लीट कर चुके। अब अभी आपको CW में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी करने हैं। सो लेट्स मूव दैट पेज नंबर 176, यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, आपको क्वेश्चंस इजीली दिख रहे हैं। फिर भी मैं आपको क्वेश्चंस रीड करके उसके आंसर्स एक्सप्लेन करूंगी। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई शुड विंडोज इन अ हाउस हैव वायर नेटिंग्स, कि विंडोज में वायर नेटिंग्स क्यों होनी चाहिए? विंडोज इन अ हाउस शुड हैव वायर नेटिंग्स टू कीप आउट फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, फ्लाइज और मॉस्किटोज बाहर रहे, उस वजह से हमें घर में वायर नेटिंग्स होना जरूरी है। नंबर 2, हाउ ऑफन शुड द गार्बेज बी रिमूव्ड फ्रॉम अ हाउस, घर में से गार्बेज को कैसे रिमूव करना है? गार्बेज शुड बी रिमूव फ्रॉम अ हाउस रेगुलरली, मतलब हमें गार्बेज को रेगुलरली रिमूव करते रहना चाहिए। उनमें से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक गार्बेज को घर में रखना नहीं है, इससे जर्म्स आएंगे तो डिसीजेज आ जाएगी, तो हम ऐसा करना नहीं है। नाउ नंबर 3, हाउ आर क्लोथ्स मेड फ्रॉम फाइबर्स, फाइबर्स से क्लोथ्स कैसे बनते हैं? क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स, fibers are very thin hair like materials that are spun into threads, मतलब फाइबर्स होते हैं बहुत ही पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर जैसे होते हैं, उनमें से हम थ्रेड धागे में कन्वर्ट करते हैं। थ्रेड्स आर वोवन टुगेदर मेक द फैब्रिक और क्लोथ, मतलब धागों को इकट्ठा करके उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? फैब्रिक में, फैब्रिक या फिर क्लोथ में।
पीसेस ऑफ फैब्रिक आर स्टिच टुगेदर टू मेक द क्लोथ्स टू वेयर। मतलब उन पीसेस को इकट्ठा करके हम स्टिच करके एक बड़ा सा क्लोथ, हम जो कुछ भी पहनने वाले हैं क्लोथ में, वो हम उसको स्टिच करके बना सकते हैं। नाउ नंबर 4, What kind of clothes do we wear in summer? हम समर में कौन से टाइप्स के क्लोथ्स पहनते हैं? We wear cotton clothes during summer because they keep us cool. हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं समर में क्योंकि वो हमें कूल फील करवाते हैं, वो हमारा स्वेट है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट? तो we are wearing cotton clothes in summer. Now number 5, explain what synthetic fibers are. Fibers such as nylon and polyester that are made by human beings are called man-made or synthetic fibers. मतलब synthetic fibers क्या है? Synthetic fibers वो है जो man-made, यानी हम लोगों ने एक न्यू मटेरियल को इन्वेंट किया है, हमने बनाया है, हम उसको क्या बोलेंगे? man-made मटेरियल। और man-made का दूसरा नाम क्या है? synthetic materials। ओके तो उसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से? नायलॉन और पॉलिस्टर। इस टाइप के मटेरियल्स हम ह्यूमन बींग्स ने इंट्रोड्यूस किए। क्लियर? सो हियर वी कंप्लीटेड आवर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, राइट? नाउ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। देयर आर 3 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आर देयर, राइट? नंबर 1, लिस्ट 5 थिंग्स दैट मेक अ क्लीन हाउस। हमें 5 लाइंस लिखनी है जिससे हमारा हाउस क्लीन रहेगा, जिससे हम हमारे हाउस को क्लीन रख सकते हैं। ऐसी हमें 5 लाइंस लिखनी है, मतलब 5 पॉइंट्स लिखने हैं। आप अपने हिसाब से भी 5 पॉइंट्स लिख सकते हो। यहाँ पे दीदी ने अपने हिसाब से 5 पॉइंट्स लिख दिए, एक बार दीदी रीड करेगी। क्लियर? Things that make a clean house are as follows. Number 1, we should keep household things in their proper places. अगर घर को अच्छा रखना है तो हमें सारी की सारी हाउस होल्ड थिंग्स है उसको उसकी प्लेस पर रखना ज़रूरी है। नंबर 2, we should sweep or mop all the rooms in the house regularly. मतलब घर में झाड़ू पोछा रेगुलरली करना is also compulsory. Number 3, we should have large and airy windows that let the sunlight in. मतलब घर में लार्ज, बड़ी और एरी विंडोज होनी चाहिए जिससे सनलाइट घर में अंदर आ सके। नंबर 4, we should have windows with wire netting to keep out flies and mosquitoes. मतलब विंडोज में वायर नेटिंग्स होनी चाहिए जिससे फ्लाइज और मॉस्किटोज हमारे घर में अंदर आ सके नहीं। नंबर 5, we should collect and remove the garbage regularly. हमें गार्बेज को रेगुलरली रिमूव करते रहना चाहिए जिससे हमारे घर में जर्म्स कभी ना आए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर फाइबर्स? डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स। कि फाइबर्स क्या है और कौन से टाइप्स के डिफरेंट फाइबर्स होते हैं। तो फाइबर्स आर वेरी थिन hair like materials that are spun into threads. There are 2 types of fibers, natural fibers, number 2 synthetic or man-made fibers. तो fibers that are obtained from either plants or animals are called natural fibers. Natural fibers के example क्या हैं? Cotton, wool और silk. Now fibers that are made by man are called man-made or synthetic fibers. Examples क्या आएगा? Nylon और polyester, right? Now question number 3. What kind of clothes do we wear in winter? हम कौन से टाइप्स के क्लोथ्स पहनते हैं विंटर में? We wear woolen clothes in winter to keep warm. मतलब हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं विंटर में कि हम अपने आप को वार्म फील कर सके, राइट? सो हियर वी कंप्लीटेड आवर आंसर इन ब्रीफ ऑल्सो। किड्स, इसके साथ आपको एक PDF भेजूंगी जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको आपकी टेक्स्ट बुक में से आपको CW में ट्रांसफ़र करना है।
दीदी ने जैसा राइटिंग की है बिल्कुल वैसे ही राइटिंग में आपको अच्छी तरह से लिखना है। न्यू क्वेश्चंस न्यू पेज में से ही स्टार्ट करोगे। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको ये सिर्फ एक ही दिन में कंप्लीट करना है। ट्राई करोगे कि आप कंप्लीट कर पाओ, अगर ना हो तो आपके पास नेक्स्ट सेशन तक का आपके पास टाइम है कि आप ये सब कुछ कंप्लीट कर लो। क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग, आपके पास ये सब कुछ कंप्लीट करने का नेक्स्ट सेशन तक का टाइम है। बट ऐसा नहीं है कि फिर आप लेजीनेस करो, कंप्लीट तो करना ही है। बहुत 4 पेजेस ही है CW के, और ये आपको टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज यहाँ पे एक्सप्लेन किया, वो भी आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लेना है। सो टिल नेक्स्ट सेशन, बाय किड्स।